NCID is organizing a weekly 1 hour Facebook Live and YouTube Live session on innovation, entrepreneurship, and startup for IGNOU students and faculty, covering different topics of common interest. The program aims at encouraging and motivating IGNOU students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The 34th session in this series, titled Startups in Tourism Back to Nature, is being organized today. Tourism and hospitality sector is one of the largest industries in India that accounts for an estimated 30 million jobs, which is projected to rise to 53 million jobs by 2029. The travel market in India is projected to reach 125 billion US dollars by 2027 from an estimated 75 billion US dollars in 2020. With the incredible diversity India offers in terms of its geography, World Heritage sites, and ecological hotspots, along with other unique cultural aspects, clearly this sector is proving to be an economic multiplier for all the related sectors. In recent times, there has been an upsurge in nature tourism or ecotourism, which is related to the conservation of nature along with the travel and hospitality component. The tourism industry today is encouraging and adopting the elements of sustainable travel and hospitality. There is also an emergence of agri-tourism, which is essentially an agriculture-based activity that brings tourists to the farm. In essence, tourism is going back to nature. In this context, new enterprises and startups are being set up around this concept, not only around the world, but in India as well. In fact, at NCIDE IGNOU, we have several students who are interested in this area and are contemplating establishing their own startups in the near future. And therefore, this topic was chosen for discussion today. To deliberate on this interesting topic, we have with us our expert, Mr. Ramesh Singh Jadon. Mr. Ramesh Singh Jadon is the General Manager of Pride Hotel, Udaipur, Rajasthan. Mr. Ramesh Singh is a highly accomplished hotel operations leader with more than 27 years of experience in hospitality and more than 10 years of experience as general manager, resort manager, with a progressive approach towards governing sales, revenue growth, profitability, enhancing customer experience, management of hotel operations, and augmenting service quality across hospitality and vacation ownership domains. He holds a BA degree from Jaipur National University and is pursuing Masters in Tourism and Travel Management from the Indira Gandhi National Open University. Also holds a diploma in hotel management, catering technology and nutrition from National Council for Hotel Management and Catering Technology, PUSA, New Delhi, and a postgraduate diploma in quality management from Mahindra Institute of Quality, Nasik. He has participated in many workshops and seminars and won several awards. He is a member of many organizations, including the Institution's Innovation Council of Indira Gandhi National Open University, established under the Ministry of Education's Innovation Cell. With an impressive track record that demonstrates his self-motivation, perseverance, and creativity, he is also an innovator whose innovations in the domain of nature tourism have received several awards, including the Mahindra Innovation Award. We are looking forward to his talk, in which he will be sharing his experiences and thoughts about today's topic. I welcome you, Mr. Ramesh Singh. We also have with us Dr. O.P. Sharma, Director NCID. Before I invite Mr. Ramesh Singh, I will request Dr. Sharma to say a few words, please. Dr. Sharma. Thank you, Dr. Momita Das, and good morning to all. I welcome Mr. Ramesh Singh Jadon, and we have been interacting with him since long, and he is very active and enthusiastic student of IGNOU. He has been participating in several activities and programs of the IGNOU organized by the National Center for Innovation in Distance Education. We have noticed that he is having deep interest in the field of tourism and also
he has inclination towards startup entrepreneurship, and in fact he's entrepreneurial mind person. So we thought, why don't we invite our students, and in that context, in this series of Facebook live session which we are organizing every Friday, we have now started inviting our such students who are doing something innovative and something good for the society. So we wanted to share their experience, their expertise, and particularly in this field of tourism, we can see a lot of startup opportunities are there, and what he perceives, what he thinks about this field in this sector. I think it will be good to listen to Mr. Ramesh Singh Jadon from his own experience, because he has developed some innovative such kind of products, also innovations he has done, and also he has been doing in this field. So it will be good to listen to him, and I hope our students will be benefited by his talk. So with that, thank you very much, Dr. Momita and Dr. Ramesh Singh Jadon, for sparing time to address our students, and hopefully they will be motivated and encouraged by your thoughts. So thank you very much. Over to you, Dr. Momita. Thank you, Dr. Sharma. Now I invite today's expert, Mr. Ramesh Singh Jadon, to deliver his talk on the topic Startups in Tourism, Back to Nature. Mr. Ramesh, please. Good morning, one, and good morning, all. At the onset, I thanks Dr. O.P. Sharma and Momita Madam and NCID और सबको मैं thanks कहना चाहता हूँ कि मुझे एक छोटा सा platform दिया है just to share my experience। और मैंने एक छोटा सा एक product launch किया था innovatively महिंद्रा कंपनी में आज से 10 साल पहले, और उसके बारे में एक थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाह रहा था। So thank you so much for giving me this platform, and I also like thanks all my colleague students like जो अभी join किए हुए हैं, और उनसे मैं it's an opportunity where I can share my thought process. Actually मैंने अपना होटल मैनेजमेंट IHM चेन्नई से 1994 में किया था। काफी साल हो गए, 27 साल से मैं इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ, और 10 साल हो गए एज ए जनरल मैनेजर। So throughout this my career, I got an opportunity to work across India. मैंने पढ़ाई चेन्नई से की है, फादर मेरे इंडियन नेवी में थे, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पूरे साउथ इंडिया और इवन नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह मतलब मैंने काम कर चुका हूँ, और अच्छे रिनाउंड होटल्स में काम किया है, लाइक हॉलिडे इन है, रमाडा होटल हो गया, रॉयल गोन बीच क्लब हो गया। सो इसी दौरान काम करते करते एक 2006 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली महिंद्रा कंपनी में ज्वाइन करने की। इनकी एक ब्रांच है होटल मैनेजमेंट की, तो उसको हम क्लब महिंद्रा बोलते हैं, एंड उसके करीब 100 के करीब रिजॉर्ट्स अक्रॉस इंडिया आ रहे हैं। तो वहां मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली 2006 में उनको वहां पे ज्वाइन करने के लिए एज ए रिजॉर्ट मैनेजर, एंड दे कीप इट्स ए ट्रांसफरेबल जॉब। तो बारी बारी में हर जगह ट्रांसफर होता रहा, और 2010 में मुझे इन्होंने ट्रांसफर किया पंचगनी में। एक छोटी सी स्टोरी में, वहां पे मैंने अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था पंचगनी में बाय नेम टेरा, तो उसके बारे में मैं आपसे जस्ट अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, एंड वे फॉरवर्ड मैं अभी 27 साल के बाद क्या करना चाह रहा हूँ, और विद द हेल्प ऑफ IGNOU एंड डॉक्टर शर्मा और NCID के गाइडेंस से। तो I landed in Panchgani. Panchgani is relatively if I can share the slide. Yeah. Panchgani सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जो मतलब 4-5 उसकी हिल्स हैं वो सराउंड करती हैं पंचगनी को, और इट्स अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, लॉट ऑफ ग्रीनरी इज देयर, नदी है वहाँ पे, पहाड़ियाँ हैं और झरने भी हैं। तो वहां पे मुझे ट्रांसफर किया, और एक प्रॉपर्टी क्लब महिंद्रा ने ली थी बाय नेम ब्लू कंट्री रिजॉर्ट। तो मैं वहां पे एज ए जनरल मैनेजर गया और उस होटल को खोला और चालू किया। तो इन बिटवीन मेरी कंपनी ने मुझे कहा कि यार बिजनेस तो काफी अच्छा आ रहा है, तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट लुकिंग समथिंग एल्स आल्सो, हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो हमारे गेस्ट हैं दे कम एंड दे स्टे विद अस, एंड दे साइट सीइंग से भी काफी रेवेन्यू भी हो रही है, और काफी अच्छा लग रहा था। तो आप एक नया होटल क्यों नहीं देखते हैं, वहां पे एक और देख लीजिए, हम अपनी इन्वेंट्री बढ़ाना चाहते हैं। नाउ आइडिया भी अच्छा था, बट यहाँ पे मुझे काम करते करते एक चीज और लगी ना, तो ड्यूरिंग माय वर्किंग टेन्योर विद द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री
आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अक्रॉस इंडिया, और वहाँ पे कई अच्छी सुंदर जगहों में मैंने काम किया है। केरल में मैं मुन्नार में था, अगेन ब्यूटीफुल प्लेस। उसके बाद मैं राजस्थान उदयपुर गया, तो मुझे एक तरह से प्रकृति से भी मतलब प्यार हो गया और अच्छा लगता था। आई यूज टू गेट a sense of feeling like comparatively, जो 5 स्टार होटल में हम लोग जाते हैं एकदम सूट वूट पहन के, आज भी मैं वो करना पड़ रहा है, और वर्किंग इन ए क्लोज एनवायरनमेंट, एसी होता है पूरा, लेकिन वहाँ वो जो एक तरह से सफोकेशन फील होता था। और जब मैं रिजॉर्ट्स में गया जी, लाइक नेचर तो मुझे भी मतलब एक तरह से अच्छा खुलापन लग रहा था। आसमान के नीचे ग्रीनरी है, बर्ड्स हैं, झरने बह रहे हैं, यू कैन इमेजिन इट। तो पंचगनी में जब मुझे ये ऑफर आया मेरी कंपनी से कि आप एक होटल और ढूंढिए क्योंकि हमारा बिजनेस काफी बढ़ रहा है, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, क्योंकि वहां पे मैंने देखा था मेरी फैमिली को भी मैं वीकेंड में लेके जाता था आसपास घूमने के लिए। तो काफी 10 साल पहले मतलब जो टेंट्स अकोमोडेशन होते हैं जंगलों में, तो वो नॉर्मल लाइक काफी टेंट टाइप के अकोमोडेशन होते हैं, वहां पे लोगों को लाते हैं और दे कम 1 रात 2 रात पिकनिक के तौर पे रुकते हैं, जंगल का एक्सपीरियंस करते हैं और चले जाते हैं। बट वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज थे, मतलब एक तंबू गाड़ दिया और एक कोने में खाना बन रहा है और वहीं पे सब कुछ जो भी खाने का वेस्ट हुआ वो सब फेंक फाक के चले गए, और मतलब काफी अनहाइजीन भी था और कंफर्टेबल भी नहीं था। और जो जो रियली हार्ड कोर लोग होते हैं, नेचर लवर होते हैं, एडवेंचर लवर होते हैं, उनके लिए बड़ा आसान था। मतलब दे यूज्ड टू सैक्रिफाइस ऑल देयर कंफर्ट्स एंड एवरीथिंग एंड दे यूज्ड टू गो एंड लाइक विद अ कॉम्प्रोमाइज ऑन सच लोकेशंस। तो मैंने अपनी कंपनी को एक सजेशन दिया कि हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं वो 5 स्टार लेवल के होते हैं, और वो एक ही जगह आते हैं, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आते हैं, फैसिलिटीज होती हैं उसको यूज करते हैं, थोड़ा बाहर घूम लिया और चले जाते हैं। वेरस वो आते इसलिए हैं कि उन्हें नेचर के पास जाना है, वो घूमने जाते हैं वहां पे 1 घंटा 2 घंटा एक दिन घूम के सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं और नेचर का एक्सपीरियंस करके वाओ बोल के फोटो वोटो खिंचा के आ जाते हैं। तो व्हाई नॉट हम अपना ये जो प्रोडक्ट है, ये जो होटल स्ट्रक्चर है, इसको और जो जंगल का नेचर है इसको क्लब करें, व्हाई नॉट वी सिनर्जाइज देम, और कुछ एक नया ऐसा करें कि हम अपने गेस्टों को वहां ले जाएं, वो 1-2 दिन रुके वहां पे, नेचर के साथ उसको ब्लेंड करें, वहां का नेचर को एक्सपीरियंस करें रुक के, कंपेरेटिवली 1-2 घंटे जाके। तो मैनेजमेंट को काफी अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैंने ये सजेशन दिया था कि जो टेंट्स जो ऑपरेट होते हैं जंगलों में, ये और हमारे जो होटल की लग्जरी है, जो फैसिलिटी, इसको क्लब करते हैं, तभी हमारे मतलब जो एलीट क्लाइंट है वो वहां पे जाके उनको हम एक नया फीलिंग और नया एडवेंचर दे सकते हैं। तो कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला ठीक है, यू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट एज ए रोल मॉडल एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट, और उन्होंने थोड़ा सा फंड भी रिलीज किया। तो हमने पंचगनी के आसपास जगह ढूंढी और हमें एक जगह मिली है पंचगनी से कम 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव है आके गनी, उसके पास में एक पहाड़ी थी और पूरे जंगल और झरने जो भी आप इमेजिन करें वो सब था। तो हम वहां गए और एक जगह स्पॉट की, उसको फाइनलाइज किया, और हमने उस जगह को नाम देना था, एक नामकरण बहुत जरूरी होता है, तो हमने उसको नाम दिया टेरा। टेरा का अर्थ होता है जमीन, धरती, अर्थ। तो ये हमने उसको नाम दिया टेरा, इज ए लैटिन वर्ड, और क्लोज टू नेचर। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने अपना काम स्टार्ट किया। तो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द स्मॉल एक्सपीरियंस विच ऑन द वर्क आई हैव डन इट। सो हमारा मिशन था लाइक एक यूनिक एक्सपीरियंस जो हम अपने गेस्टों को दे सकें नेचर के क्लोज में, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे गेस्ट भी आते थे, आप यकीन मानिए कि बच्चे गाय और भैंस का दूध पीते हैं लेकिन उन्होंने भैंसें नहीं देखी हैं, ऐसे भी लोग आते थे। स्पेशली बॉम्बे से काफी मतलब बच्चे आते थे, उन्होंने भैंसें और गायें नहीं देखी थी। दे यूज्ड टू से वाओ। तो हमारा मकसद था कि एक यूनिक एक्सपीरियंस हम अपने गेस्टों को दें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी हाइजीन एंड दी कंफर्ट, क्योंकि वो आदी हो चुके रहते हैं जो गेस्ट है ना वो लग्जरी में। तो हमने उसको ब्लेंड करके हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, और इसकी इंस्पिरेशन हमें ऑब्वियसली महिंद्रा कंपनी से आई है। ये मैं भाग्यशाली था कि एक बहुत अच्छी कंपनी में काम किया कि जो अपना काफी रिसोर्सेज अपने एम्प्लॉयज पे डेवलप करती है, उनको ट्रेनिंग देने में, उनको पढ़ाने में,
और साथ साथ काम भी करवाने में। यहीं पे मैंने महिंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी है नासिक में, एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मुझे काफ़ी बार मौका दिया गया था कि वहाँ जाऊँ और वहाँ पढूं, और वहीं से मैंने महिंद्रा से सीखा था ये इनोवेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन सिक्स सिग्मा और क्वालिटी टूल्स, काफ़ी लर्निंग्स मतलब वहाँ से की है। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये सही मौका है, लेकिन वहाँ पे तो महिंद्रा कंपनीज हमें देती थी। मैं पिछले 1-2 साल से इग्नू को फॉलो अप कर रहा हूँ, और जो वी ऑल आर इंडीड वेरी प्रिविलेज, जो कंपनियां मतलब काफी हाई चार्ज करती हैं हम लोगों को इन कोर्सेज कराने में, वो इग्नू के डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स, जो एनसीआईडी के स्पेशली जो इनिशिएटिव्स हैं, काफी फैकल्टीज वीकली बेसिस आते हैं, ये हमें वहाँ सीखने को मिलते हैं। और इसके लिए हमें वहाँ पे, जब मैं महिंद्रा में था, हमें लाइक वी हैव टू कम्पीट, सो वी आर प्रिविलेज टू लर्न दिस ऑल दीज थिंग्स थ्रू एनसीआईडी, कर्सी डॉक्टर ओपी शर्मा। तो यहाँ से मुझे इनोवेशन के बारे में काफी सीखने को मिला और काफी इंटरेस्टिंग भी लगा था। तो महिंद्रा वाज माय इंस्पिरेशन टू गो फॉर दिस थिंग। और महिंद्रा में एक कहावत है कि यू एक्सेप्ट नो लिमिट। आपके अंदर जो विचार है उसको आप कीजिए, और कोई लिमिट मत रखिएगा कि नहीं हो सकता है, कि नहीं हो सकता है। और उसको अचीव करने के लिए थिंक डिफरेंटली। लोग अगर एक रास्ता बताते हैं, आप दूसरा भी सोचिए। तो ये है ना, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग इज दी अनदर पिलर था जो महिंद्रा में अभी भी आज की डेट में भी एक कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, राइज करके, हमें ऊपर उठना है। तो ऑल्टरनेटिव थिंकिंग वाज अनदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि हमें कुछ करना है तो उसके लिए एक ध्येय बना के अलग अलग से सोचना है। और एक बार हमने उसको टारगेट कर लिया, उसको सीख लिया, तो ऑल्टरनेटिव थिंकिंग को हमें पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ड्राइव करना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये भी अनदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था हमारे लिए। और जब हमें गो हेड मिल गया कंपनी से कि भाई आप जाइए टेरा को स्टार्ट कीजिए, तो काफी चैलेंजेस थे। पहले तो हमने यहाँ कभी सोचा भी नहीं था, वहाँ पे काफी लो लेवल के टेंट्स भी ऑपरेट होते थे, और हम आए थे एकदम लग्जरी हाई एंड ऑपरेशन से। तो तो चैलेंजेस थे कि वहाँ पे हम कैसे मतलब इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्ट करें हाइजीन के लिए अपने यहाँ पे, इन टेंट्स को कैसे अच्छा बनाएं, हमें क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, और फिर अगर लाइसेंस आ गए तो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें अलग से एसओपीज होती हैं हमारे होटल लाइन में। हर डिपार्टमेंट में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, आपको वो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। इसी के कारण हमारे यहाँ पे एक लेवल ऑफ गेस्ट एक्सपीरियंस हम दे पाते हैं और बिजनेस एनहेंस करते हैं। तो टेरा के लिए हमें नई एसओपीज भी डेवलप करनी थी, ये भी एक नया चैलेंज था क्योंकि नई टेरिन थी हमारे लिए। सो दीज ऐसे कई चैलेंजेस हमें थे, और हमने काफी मंथन किया, काफी टीम वर्क किया और टुगेदर हमने जो उसका निष्कर्ष निकाला था कि हमने इन टेंट को बनाने के लिए हमने सिलेक्ट किया कि हम शुरू में 10 टेंट बनाएंगे, और इसके लिए कॉम्प्रोमाइज हम क्वालिटी से कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने एक थार कैंप करके एक कंपनी थी जो ऑस्ट्रेलिया में ये टेंट्स अकोमोडेशन उस टाइम काफी फेमस था, इंडिया में तो नया नया था। तो उनसे हमने टाई अप किया। इनके जो टेंट्स थे वो अफोर्डेबल थे, लो कॉस्ट थे, और जो जंगल में जैसे फायर प्रूफ थे, बारिश वगैरह का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था, और इंसेक्ट भी मतलब रिपेलेंट टाइप के थे, और अच्छे मतलब टेंट्स क्वालिटी थे। तो इनसे हमने एक टाई अप किया इसके लिए। और उसके बाद हमें लगा कि यहाँ पे अभी टीम कैसे लाएं, क्योंकि 25 किलोमीटर दूर सिटी से जाने में हमें दिक्कत आती थी, और हम चाह रहे थे हमारा जो सर्विस स्टैंडर्ड है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, वहां पे हमने एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट भी किया था आर्मी में रहते हुए, बाय नेम मिस्टर नितिन जोशी। तो उनको हमने रोप इन किया एज ए लीडर ऑफ दैट टेरा, और उनको हमने करके, और फिर वहाँ के लोकल जो गांव था आकेगनी, वहाँ के सरपंच से हम लोग मिले, और वहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के थे 10वीं पास थे, 8वीं पास थे, उनको हमने रोप इन किया क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे, एंड इट वाज इजी फॉर अस टू गेट द मैन पावर आल्सो। तो हमने वहां से लड़के रिक्रूट किए विद पॉजिटिव एटीट्यूड, और उनको हमने हॉस्पिटैलिटी के बारे में ट्रेनिंग देनी शुरू की। स्पेशली हमने यहाँ फोकस किया मल्टीटास्किंग पे, क्योंकि सिटीज वगैरह में अगर आप जाएं आपको मैन पावर की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन अगर दूर कोने में रहें और कंटिन्यूसली 24 घंटे मैन पावर मिलना और हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एरिया के लिए मिलना काफी दिक्कत होता था। तो हमने इनको काफी मल्टीटास्किंग की। जैसे कि एक शेफ है,
वो खाना बनाने के साथ साथ शाम को गेस्टों के साथ बैठ सके, उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सके या लाइव कुकिंग कर सके। ऐसी जो लड़का रूम क्लीन करे या टेंट क्लीन करे दिन में, तो वो शाम को जाके या टाइम निकाल के कुछ एक्टिविटीज बाहर कर सके। इस तरह से हमने मल्टीटास्किंग पे काफी फोकस किया अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्स आर्मी ऑफिसर और हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये 3 चीज हमने वहां पे ब्लेंड की अपनी सर्विस के लिए। तो हमारा एक टेंट हो गया अच्छा सा, लग्जरी टेंट के लिए हमें टेंट मिल गया थार कैंप से, हमें मैन पावर भी मिल गया, और इसी तरह से फिर हमने एसओपीज भी वहां पे डेवलप की विद द हेल्प ऑफ मिस्टर नितिन जोशी, एक्स आर्मी पर्सन थे। उन्होंने हमें काफी एसओपीज बताई जिसमें स्नेक बाइट के में क्या करना चाहिए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या करना चाहिए। इस तरह से हमने टेरा की एसओपीज भी वहां पे डेवलप की, और जंगल सर्वाइविंग, और ये हम मतलब बेसिकली प्रोडक्ट रेडी कर लिए थे 2010 के आखिरी में। ये हमारा मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग सब कुछ हमारा तैयार हो गया था। और उसके बाद हमने ये सोचा कि अभी गेस्ट आएंगे, उनको नेचर का एक्सपीरियंस तो दें साथ में, लेकिन वो आते भी हैं कि यहाँ पे कुछ जैसे कि अभी नदी बह रही है, तो नदी में हमें व्हाई नॉट वी गो फॉर दिस थिंग रिवर ड्राफ्टिंग। अभी वहाँ पे पंचगनी में अगर आप देखें तो वहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग भी काफी फेमस है। तो पैराग्लाइडिंग के लिए भी लोग, तो हमने यहाँ पे जो वेंडर्स होते हैं पंचगनी से और उसके सतारा डिस्ट्रिक्ट से, उनसे टाइप किया, और हमने काफी एक्टिविटीज भी वहाँ पे रिसोर्स कर ली थी कि हमारे गेस्टों के लिए ये रहेगा। तो हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, एक अच्छी टीम मिल गई, सारे लाइसेंसेस हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ओके हो गए थे, और थोड़ा अच्छा करने के लिए हमने काफी एक्टिविटीज भी वहाँ पे रोप इन कर ली थी। तो इस तरह से हमने लॉन्च किया 2010 के आखिरी में हमारा टेरा का जो प्रोजेक्ट है। ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शुरुआती दौर पे है। जो पहाड़ी थी वहां पे नेचुरली 3 लेयर बने हुए थे, 3 लेयर कटे हुए थे पहाड़ी पे। तो उन्हीं 3 लेयर पे हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो सेट किया था वहां पे, बिना डिस्टर्ब किए नेचर को। तो ये एक पहाड़ी है, वहां पे हम लोग एक छोटा सा गार्डन का ये जो स्नैपशॉट है काफी पुराना है। तो ये टेरा का एवोल्यूशन है, पंचगनी में ये हमने शुरुआत की थी। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये गजीबो है। हमने कॉन्सेप्ट किया था कि हर 3 टेंट के आगे एक कॉमन एरिया गजीबो टाइप है, जहाँ पे मतलब लोग आके बैठ सकें, गपशप कर सकें, एंटरटेन कर सकें, चाय कॉफी पी सकें सुबह बैठ के, और नेचर को एंजॉय कर सकें। तो ये हमने हर 3 टेंट के आगे एक गजीबो लगाया था हमने। ये है टेंट के जो लग्जरी टेंट के जो स्ट्रक्चर्स जो बन रहे थे, हमने पूरा बेसिक नेचर के साथ ही इसको ब्लेंड किया था, बट विथ ए गुड कंफर्ट ऑफ गेस्ट को कोई परेशानी ना हो, इस तरह से। टोटल 10 टेंट थे ये, और ये है कॉमन रेस्टोरेंट, मतलब सारे गेस्ट, कोई रूम सर्विस नहीं, कुछ नहीं, ये डू इट योरसेल्फ है। एक टाइम हमने फिक्स कर दिया था कि गेस्ट लोग और घंटी भी बजती थी एक, यहाँ पे कोई टेलीफोन नहीं, कोई टीवी नहीं रूम में, प्योरली नेचर और आप। तो ये कॉमन एक हमारा रेस्टोरेंट था जहाँ पे गेस्ट आते थे, और टाइम फिक्स रहता था, वो अपना मील खाना वगैरह खाते थे, और फिर दे यूज्ड टू गो बैक टू द नेचर। और गजीबो में चाय कॉफी दिन रात चलती रहती थी, उसमें कोई इशू नहीं था। फिर हमने ये लॉन्च किया था, ये पूजन हुआ था हमारा टेरा का, और इसमें हमने 4 चीजें, जब हमने शुरुआत तो किया था हमारे गेस्टों को नेचर के क्लोज लाएंगे और उनकी लग्जरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन इसमें आउटकम जो हमें मिला था ये काम करते करते हुए, जो बेनिफिट हमें मिला वो 4 चीजों में हमें अच्छा मिला था। एक तो है प्रोडक्ट, दूसरा प्रॉफिट, और तीसरा जो पीपल, और प्लानेट जिससे मैं काफी अटैच था, क्लोजनेस टू द नेचर। तो जो प्रोडक्ट हमें निकल के आया था वो एक नया प्रोडक्ट था, यूनिक था हमारे लिए, क्योंकि इट्स ए ब्लेंड ऑफ टेंट एंड लग्जरी ऑफ द होटल। तो और फायर रेसिस्टेंट, और काफी मतलब कैनवस टेंट्स जो अच्छे थे, मतलब वो हमें मिल गए थे, और इस तरह से। तो जब ये प्रोडक्ट निकल के आया था हमारा, तो ये इस तरह से निकला था। ये जो हमारे जो टेरा है, वहां से आप देखें तो ये पहाड़ियां और ये सब, ये पंचगनी का जो शाम का व्यू है वो भी दिखता था, मतलब इस तरह से लाइटिंग, और नीचे पहाड़ियों के नीचे भी आप अगर देखें तो लाइटिंग है, जहाँ काफी गांव है। तो ये बहुत अच्छा लगता था, आप वहां से देखें शाम के टाइम पे ये जो व्यू है। और ये है जो टेरा का जो शाम का व्यू है जब हमारा प्रोडक्ट निकल के आया था।
ये सुबह सनराइज जो सुबह होता है, तो मतलब यू एंड द नेचर एंड नथिंग एल्स, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा निकल के आया था। ये रेस्टोरेंट से हमने एक शॉट लिया था वहां से सनराइज के टाइम पे। और ये सनसेट का व्यू था वहां से। ये टेंट के अंदर का एक छोटा सा झलक है जो हमने उस टाइम पे बनाया था। अभी तो खैर काफी मतलब इससे भी आप आगे निकल चुके हैं लोग, काफी होटल्स और काफी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये टेरा के इंटीरियर है, इसमें एक मास्टर बेड होता था हमारा, और बच्चों के लिए भी हमने एक बंकर बेड बनाया था। और जो बेसिक्स होते हैं जैसे शेविंग मिरर हो गया, अलमारी हो गई सामान रखने के लिए, ये सब चीजें इस टेंट्स में मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज थी वो दी गई थी। एक्सेप्ट टीवी, हमने टीवी प्रोवाइड नहीं की थी और टेलीफोन भी नहीं दिए थे उसमें। तो और बाथरूम वगैरह, गर्म पानी और एयर कंडीशन भी हमने लगाए थे उसमें। तो इस तरह से ये जो छोटा सा टेंट का इंटीरियर है उसका व्यू शेयर कर रहे हैं हम आपसे। और ये है जो एडवेंचर्स के लिए हमने गेस्टों को जो रोप इन किया था, उनको एंटरटेन करने के लिए दिन में मतलब नेचर से रिलेटेड सारी चीजें थी। हॉर्स राइडिंग थी, नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग था, और जिप लाइन थी जिसमें आप फैमिली करती थी। फोटोग्राफी हम लोग सिखाते थे उन्हें, जंगल में फोटोग्राफी, नेचर, फ्लोरा फौना, जानवरों की, पक्षियों की कैसे फोटो लेते हैं, ये हमने मतलब क्लासेस रखी थी वहाँ पे। पैराग्लाइडिंग होती थी वहाँ पे दिन में। और रात के टाइम पे मतलब दे यूज्ड टू गेट टुगेदर गजीबो में, हम लोग काफी बॉन फायर के ऊपर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह ये करते थे। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रोडक्ट था इसका बेनिफिट हमें हुआ था वहाँ पे, और काफी गेस्ट खुश थे। कंपनी ने हमें, जब मैं काम कर रहा था तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट हर जगह देखती है, प्रायोरिटी भी रहती है। तो इस प्रॉफिट में भी हमने कंपनी को काफी मतलब बेनिफिट हुआ था। कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी आप कोई भी 5 स्टार होटल में जाएं और आप एक होटल का कमरा बनाएं, तो उसमें अंदाजन आपको खर्चा आता है वो है 50 लाख के करीब। मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाना, अंदर जो लग्जरी फैसिलिटीज हैं उसको आप फिटिंग करें, तो 50 लाख के करीब ये अंदाजन खर्चा आता है। इस टेंट को बनाने में विथ ऑल द लग्जरी एंड एवरीथिंग, द टोटल एक्सपेंस हमें मिला था जो वो था 8 लाख। सी द डिफरेंस कंपनी को, मतलब कितना प्रॉफिट हमने दिया इससे। और गेस्ट के वाव फैक्टर तो अलग थे, मतलब द पीपल वे वेरी हैप्पी विथ इट। तो ये कॉन्सेप्ट काफी भाया कंपनी को और हमारे गेस्टों को भी, और जो लोकल लोग थे उन्हें भी। और इसका जो आउटकम निकला वो कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी जितने भी हमारे जंगल या जो भी हिल स्टेशन हैं या जो भी नेचर के क्लोज में हमारे रिजॉर्ट्स थे, उनमें ये एडिशनल ये एक्सपीरियंस हमने ऐड किया। तो ये हमारे यहाँ एडिशन हुए हैं कुर्ग में, क्लब महिंद्रा कुर्ग में आपको टेंट्स मिलेंगे लग्जरी। और अभी काफी उसमें खैर अपग्रेड्स किए गए हैं। कुंभलगढ़ में है, और कान्हा में भी ये काफी मतलब अच्छे कंपनी ने हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ये कंपनी ने ये जो हमारा जो थॉट प्रोसेस था इसको अडॉप्ट किया, और काफी प्रॉफिट मार्जिन भी था कंपनी के लिए, और उन्होंने इसको हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय भी करना शुरू किया। पीपल पीपल में लाइक जो हमारे जो जो मूल थे, मतलब जो जेनेसिस थे हमारे, वो थे हमारे कस्टमर। जो गेस्ट आते हैं उन्हीं से हमारी लाइक आमदनी भी होती थी, और उन्हीं के लिए हम ये सब कर रहे थे। तो जो कस्टमर डिलाइट था वो अनथिंकेबल था। इसके पहले सिर्फ वही है, आगे नेचर लवर हो या फिर जो कोई राइटर हो या फिर बर्ड वॉचर्स हो, वही जाते थे, मतलब तकलीफें होती थी उनको। लेकिन इसमें हमारी कॉमन फैमिलीज जो बॉम्बे या कहाँ कहाँ से आते थे, ये सब जाते थे यहाँ पे। और एक कस्टमर डिलाइट मत बॉस वेरी बिग हिट इन क्लब महिंद्रा। इट्स लाइक जियो लाइफ मूवमेंट जो हमारा लोगो था उसको पूरा मीट कर रहा था। सो आवर गेस्ट वर वेरी हैप्पी विथ इट। सेम वे एम्प्लॉयज जो हमें थे, जो हमने लोकल रिक्रूट किए हुए थे, वो भी काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट भी मिला था सोर्स का, उनके घर के पास में मिला था। और जो काम था उनका वो भी उसी एनवायरनमेंट में था, और उसी मतलब लाइक जिस तरह से वो पले बड़े नेचर में थे उसी के लेवल का जो था। तो इवन एम्प्लॉयज वेरी वेरी हैप्पी। तो इस तरह से, और उसको उनको हमने मल्टीटास्किंग से एक और चीज सिखाई कि कई लोगों ने इसको हमें यहाँ सीख के बाद में पता लगा कि लाइक कई लोगों ने तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। तो इवन द एम्प्लॉयज वर वेरी हैप्पी विद दिस। तो द पीपल जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव था वो भी हमें बेनिफिट इसमें काफी मिला था। और
ये सबसे खास बात है कि प्लानेट हमने वहां पे ब्लेंड किया, लग्जरी और नेचर को ब्लेंड किया, लेकिन हमने एक चीज का हमेशा ध्यान रखा कि हम जो भी मतलब हमारी एक्टिविटी है वो नेचर के को मतलब खराब ना करे। इसीलिए जब हम टेंट बना रहे थे तो हमने जो नेचुरल वे में वहां पे 3 पहाड़ी पे जो 3 ये कटाव थे उन्हीं को यूज किया था, हमने अलग से कोई वो काटा नहीं था। इसी तरह जब हमने टेंट बनाए तो हमने वहां पे एसटीपी एनवायरमेंट फ्रेंडली एसटीपी प्लांट्स लगाए। रिसाइकलिंग जो वाटर वेस्ट निकलता था वो हमने वहां पे गार्डन और जितने भी एरियाज थे उसके लिए यूज किया। फिर हमने वहां पे सोलर पैनल भी लगाए थे और जनरेटर नहीं था वहां पे, हमने जनरेटर की जगह कैंडल रखे थे और गेस्टों को भी बताया था कि हम इसको नेचर के साथ ब्लेंड करना चाह रहे थे। और जो भी किचन का जो भी वेस्ट निकलता था उसको हम वर्मी कंपोज करते थे और उसको गार्डन में रीयूज करते थे। और इसी तरह से द कॉन्सेप्ट वाज, गेस्टों को हम समझाते थे कि गो ग्रीन का मतलब बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे फोर फादर्स ने हमें ये जो पृथ्वी दी है और ये जो हमें आज का एनवायरनमेंट दिया है, ये हमारे फोर फादर्स ने काफी सोच समझ के दिया है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली पीढ़ी एटलीस्ट दो जनरेशन्स को हम इसी तरह सबोर के सवार के दे कि मतलब उनको ये जो नेचर है वो मिले अच्छे से, ये मेरा मानना है। और ये इवन जो थॉट प्रोसेस है आज की डेट में पोस्ट कोविड स्पेशली ये अभी ये टिल्ट हो रहा है और ये लोग रियलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि मतलब हम जिस तरह से हमें हमारे फोर फादर्स ने दिया है जो नेचर और एनवायरनमेंट, वही हम अपने जनरेशन के लिए सिक्योर करें और उन्हीं को पास ऑन करें। तो गो ग्रीन कॉन्सेप्ट हमारा काफी हम गेस्ट को एजुकेट भी करते थे इन चीजों में। और इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के सीएमडी हैं मिस्टर आनंद महिंद्रा, उन्होंने मतलब अवार्ड भी हमें मिला था और हम काफी प्रिविलेज हैं इसके लिए। और ये बहुत आउट ऑफ द वे थिंकिंग थी उस टाइम के लिए, 10 साल के लिए पहले। और वे फॉरवर्ड जो अभी 27 साल के बाद 1 या 2 साल में मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे स्टार्टअप मैं अपना खुद का एक छोटा सा रिजॉर्ट डेवलप कर रहा हूँ। और जो टेरा से जो लर्निंग थी, जो आज के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके और भी अपने इनोवेटिव लर्निंग्स हैं उनको एक्सपीरियंस में डाल के इसको अगेन क्लोज टू नेचर आई एम मेकिंग माय ओन छोटा सा एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 या 2 साल में शायद होपफुली 2023 तक ये बन जाएगा। और मैं एक जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बनने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा एक एक्सपीरियंस, हमने एक सक्सेसफुल मॉडल हमने किया था, वो आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर की है मैंने। और मैं आगे क्या करना चाह रहा हूँ ये एंड आई विल बी टेकिंग लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम इग्नू एंड एनसीआईडी, क्योंकि इस तरह की हेल्प मिलना और इस तरह के जो फैकल्टीज हैं और जो डिफरेंट सेगमेंट से हमें जो हर हफ्ते ये सीखने को मिलता है, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो आई विल बी टेकिंग लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम एनसीआईडी, इग्नू और अपने स्टार्टअप में। सो दिस वाज फ्रॉम मी। और कोई सवाल हो तो जरूर प्लीज आई वेलकम ऑल द क्वेश्चंस इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस। थैंक यू मिस्टर रमेश। आपका जो टॉक था वो एक जुडिशियस ब्लेंडिंग ऑफ नेचर विद एंटरप्रेन्योरशिप था। आपने बहुत ही ल्यूसिड मैनर में इसको एक्सप्लेन किया एंड आई होप दैट आवर स्टूडेंट्स विल गेट अ बूस्ट फ्रॉम योर टॉक so that they can move positively in this direction. वो अगर खुद भी इस तरह का स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंस से उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो अभी द फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन और मैं चाह रही हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करना सो दैट इफ दे कम अप विद एनी कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस आई वुड लाइक टू इनवाइट देम। रमेश जी, ये अपना प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए so that screen is clear and it was really wonderful presentation। जो कहते हैं जंगल में मंगल करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपने वहाँ किया और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से क्या-क्या लग्जरी को और गांव की जो नेचर के साथ में जो ब्लेंडिंग की अप्रोच है, दैट्स यूनिक एंड आई थिंक उसी की वजह से आपने जो 4 P's की जो बात की है एंड पीपल आर हैप्पी, प्रॉफिट इज जनरेटिंग, एक आपका इनिशिएटिव रहा है, दिस ऑल थिंग्स
I think they must be inspiring for all those who are watching you live and also will be watching later on. क्योंकि जब हम कहीं भी कोई पहला स्टेप लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही जरूरी है कि वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स अराउंड अस कि लोगों की क्या नीड है, what people are requiring, what kind of new things could be done. अगर उन प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे आपने कहा लोग शहरी जो जिंदगी है उससे अलग जाना चाहते हैं, नेचर के साथ रहना चाहते हैं, लग्जरी को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, तो इस तरीके का एक ब्लेंडिंग आप कैसे करेंगे, और वो भी एक ऐसे रिमोट एरिया में जाकर के विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट ऑल्सो कंप्लीटली, जो आपने जो 4 पीस की बात की है उनके साथ में रहते हुए वहां के लोगों को रोजगार भी आपने दिया. They were also happy, I think, not only happy, they could have been supportive also, क्योंकि अदरवाइज बिना इसके वो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का जो जंगल में मंगल होने वाली बात उनके आसपास में हो भी सकती है, बिकॉज ऑफ दिस यूनिक आइडिया जो आपने उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके देखा. सो रियली इट इज अ वेरी inspiring and motivating story that you have shared with all of us. Thank you very much. I think others can give their comments and also give their observations. Thank you, Dr. Sharma. Mr. Ramesh has just disconnected. We're getting him back. In the meantime, अगर किसी और के पास कोई comment है, कोई observation, कोई thought है, so we'd like to listen to that, please. Can I come in, Mamita? Yes, please, Dr. Vijay Kumar. Yeah. I think I'm unable to see Mr. The presenter, but it was a very good presentation, and he has gone into the nitty-gritties of how to rather conceive a startup in those kind of locations. But I have one question, like how one should either promote or market such startups, especially when it is promoted by an independent group or one or two friends joined together and start off that. Now, in this case, it was Mahindra, big, rather Indian company with diversified businesses. Now, they could manage that. But in case of startups by individuals who form a group of 3 or 4 people, and they would like to take this forward, then how do they have to go, and how do they market or they promote? Because again, without marketing or promoting, somewhere in places, locations of any of these states where you have those well identified. So I just wanted to ask him how one has to promote and market. Does he has to have a tie-up with any of those organizations, or what is that? Thank you, Dr. Vijay Kumar. We'll pass on that question to him. Yeah, so I that he think can I answer. would like to comment here. There are two things. One is like they being in that business, they thought of expanding their business further in that area. That was one of the aspects. And but learning from them, like Mr. Jadon has learned, he has done and he has learned. And also I think other players who are in this business, they also might have learned many things. Like Mahindra has done this kind of innovative thing in that particular remote area, village setup. So why can't it be replicated in another setup? That I think others might be doing, might be following also, certainly. Because now it's not only Club Mahindra that they are doing this kind of resort business. There must be many other such players who would have been doing this kind of business, and then they might have learned from them and then might have practiced also. I would like to give you an example, like alongside these highways, national highways, there are many people from the village areas
they are setting up their resort type of that setup, making all facilities for your stay, food, and plays, games. I see alongside the highways there are they are making that kind of ambience, like it looks like you are in a Rajasthan, you are like in a Gujarat or in some in a very remote village area where lots of greeneries. There are lots of other that recreational facilities are there, other things. So people are doing maybe on a small scale. Yes, yes, sir. You are right. I think these are all something like unorganized motels. Yes, yes. But in that case, you see, there are few. This I would like to name, like here on this Sonipat Panipat highway. There is a, what is that? Muruthal. Muruthal model is also one kind of unique model that has created, and it is being replicated in many places. I have seen, not in the name of Muruthal, but similar kind of thing with innovative and additional value addition in that. That is being done. So that, I think, maybe giving rise to entrepreneurship and startup. Yes. I think Mr. Raj Dr. Jadhav, Sharma, yeah, Mr. Ramesh he Yadav will be has the right joined, person to respond. and yeah, Dr. Sharma, Mr. Ramesh has joined, and Dr. Vijay Kumar may ask him that question again, please, Dr. Vijay Kumar. Mr. Ramesh, it was a real good presentation. And I just wanted, I had something in my mind. Now, this is a very good idea what you had when you were with Mahindras. And Mahindra is a big company, needs no introduction. But if the same startup, if else some a normal person like you and me, a group of friends would like to start, then how do I identify or how do I market or promote my services or my what do you call the so what do you how do you suggest that? And also the location of the resort is more important. That Absolutely, I agree with you. मेरा ये सजेशन है विच आई एम डूइंग इट नाउ इज लाइक जो मैंने अपना सेटअप बताया था, मैं इस इंडस्ट्री में तो काफी घूम चुका हूँ ऑलरेडी, बट फाइनली मैंने प्लान किया है कि मैं इंदौर में सेटल हो रहा हूँ. आई एम लाइक माय फैमिली इज हियर इन इंदौर. तो इंदौर के आसपास मैं ऑलरेडी ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे फॉरेस्ट हैं और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की मदद ले रहा हूँ इसमें. तो एक तो आपको जगह फाइनलाइज करनी है इसके लिए, और जगह के साथ साथ आई वुड सजेस्ट आप एक फीडर मार्केट हमेशा अपने पास में रखिए. फॉर एग्जांपल मेरा जो एम है इंदौर में, वो 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर के दायरे में, मतलब इंदौर से बाहर ये प्लान है. और मैंने 2-3 जगह लोकेशंस देखी भी हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात भी कर रहा हूँ इस चीजों में. एक ये 2 बीघा के करीब जमीन है और उसकी फीडर मार्केट इंदौर है. इंदौर में ये कॉन्सेप्ट पूरी टोटली नया है. एक यहाँ से आपको फीडर बिजनेस, एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू डू बिजनेस आल्सो, और नेचर के क्लोज में भी रहना और अवेयरनेस भी करनी है जो ये कॉन्सेप्ट है. तो आप एक आइडेंटिफाई कीजिए जगह. आप उस जगह को या तो लीज पे ले सकते हैं, लोग लीज पे भी देते हैं और काफी अच्छे रेट पे, सस्ते रेट में मिल जाती है 5 साल 6 साल के लिए. और ये मेरा सजेशन रहेगा, आप अपने उसमें एकदम टोटल इन्वेस्ट ना करें, टोटल पूरा पैसा उसमें ना लगाएं. रिलेटिवली एक अच्छा जो इस कॉन्सेप्ट से और भी आप सीख ले सकते हैं. आई एम देयर, आई विल गाइड यू आल्सो हाउ आई एम डूइंग इट. एंड उस तरह से आप अपना छोटा सा सेटअप कीजिए. और एनसीआईडी इज ऑलवेज देयर टू टेल अस जो टूल्स होते हैं, सी आइडिएशन हो गया, इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई है, ये सब चीजें हमें यहाँ से मिल सकती हैं. और एक्सपर्टाइज चाहिए वो आई एम देयर. और मेरा ये सजेशन है, आप एक फीडर मार्केट जरूर ध्यान में रखिएगा और ये जरूर हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है, हो सकता है. Thank you, Mr. Ramesh. Thank you. Thank you, Dr. Vijay Kumar. Do we have any other comments or observations from our listeners here? We have a comment from Mr. Asad Nizam and a question also in the chat box. He says, thanks for the lovely presentation. Kindly elaborate a little on the kind of jobs and businesses that got created from your project, Terra. There are threefold jobs. एक तो लोकल लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनको ट्रेनिंग भी मिली है. जस्ट
पास या 8वीं पास के बच्चे थे, उन्हें होटल लाइन के बारे में पता नहीं था, अपना सेटअप कैसे करना ये पता नहीं, तो उन्हें एक तो हमें एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली मिल गया। उसके बाद जो वेंडर्स थे, वेंडर्स को भी हम लाइक नो सामान हम उनसे लेते हैं पंचगनी से, तो वेंडर्स को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिला है और उनका भी बिजनेस बढ़ा है। साथ में जो बच्चे हमारे यहाँ जो काम करे, उन्होंने 6 महीने या 1 साल काम किया और उन्होंने अपने स्टार्टअप्स किए, अपने अपनी ट्रैवल एजेंसी छोटे छोटे खोले थे उन्होंने। तो इस तरह से लाइक नो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे डेफिनेटली मिला है, और कंपनी को तो ऑब्वियसली बिजनेस था इसमें। So it was a job provider also, other than seeker opportunity. Thank you, Mr. Ramesh. हमारे पास और कोई comment या observation या query है? Do we have any other point to discuss? Mr. रमेश, हमारे पास यहाँ जो listeners हैं वो इंडिया के different parts से हैं। हमारे इग्नू के रीजनल डायरेक्टर्स भी हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, जैसे प्रोफेसर विजय कुमार थे जो उन्होंने अभी आपको सवाल किया था। इस तरह के और भी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं। एंड so if we do not have any other query, Dr. Sharma, can we wind up today's session? Yes, we can wind up if there is no question. So आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा for our students? I would like to wish all the best to Mr. Ramesh Singh Jadon for his own startup, and I think he will be certainly a motivation to all other students, because after working for so long in the industry and learning a lot, and also being motivated by NCID's activities to set up our own stuff, I think it is a good for us also that our students are being encouraged towards the startup. And then I hope you can do, because you have that kind of experience, you have that kind of talent, and also main thing is the mindset. You have that kind of inclination, and this industry is growing also, and people need, because people are fed up with the city life, urban life, very busy. They want to go out for some time, and then if they are getting all those facilities plus the nature, then I think they will enjoy it. And then another factor, very important factor many times, is like people who are in elite class, they can spend any money, but if the people of middle class are taken care, those who are not cannot afford the high cost, if you are making this kind of arrangement and that is suitable for such people, then I think it will be useful. You can get a more people, more clientele. Yeah, Dr. Sharma, I want to add one more. You said the urban life and city life. Besides all this, it is also work from home monotony. Yes, that's exactly. Both things are there, because whatever is, people are fed up with this monotonous life in the cities. They want to go out for. I have seen being in Delhi, you find every Friday evening or Saturday morning, the roads are full going out from Delhi, maybe towards the Uttarakhand, maybe towards the Himachal, maybe even towards the Agra and Mathura, Jaipur. So whatever these satellite towns are there, cities are there, people are going out. They don't want to go from Delhi to another city. They want to stay somewhere in between. If they are going from Delhi to Agra, they would certainly love to stay somewhere in between, close to the nature, close to the rural setting, where they can understand, learn about the Indian life also. Like you talked about that, they don't know कि वो भैंस कैसी होती है, दूध कैसे निकलता है. अगर वो गांव के सेटअप में ऐसे बहुत से लोग एफर्ट कर रहे हैं, and if these things are done after understanding the need of the people, after understanding the pocket of the people, that is also very important. Timings of the people, those all things I think will make it very successful. And आपका जो motive है, वो I hope you will be certainly able to do that. और ये बहुत जरूरी भी है, लोग कर रहे हैं, और ये हमें आपसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स के, particularly those who are working in the field of tourism and in this rural agriculture field. They can do this kind of thing. So it's a really very exciting and interesting
presentation that you have given. Dr. Avilash Naik wants to say something. Dr. Abhilash Naik is Regional Director of IGNOU Regional Center Patna. Welcome, Dr. Naik. आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you very much. First of all, I would like to congratulate Ramesh ji for two reasons. One is for being with Mahindra, because I have a lot of respect for Mahindra as a group, because they do many unconventional things to help people. Today only in the morning, there was a news that Mahindra group is going to create medical facilities for all the learners who are not getting admission into the conventional medical colleges. So that's a great news. वो बोल रहे थे कि आगे बच्चों को बाहर कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होगा. This is a recent news. And आपका जो ये जो है TERA, that's a wonderful concept, because I belong to a very rural area. All these things that you have been talking about, I am very close to all these things. मतलब TERA में जमीन के साथ नेचर, आपका जो कैंपिंग, नेचर एंड एडवेंचर, जो टैगलाइन बहुत कैची है. एंड आई एम श्योर यू विल हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये. कभी चाहेंगे तो हम आपके टेरा में भी एक दिन कैंपिंग के लिए जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे. बट आई रियली लाइक इट, दिस कंसेप्ट. हमारा एग्जामिनेशन चल रहा है इसलिए मैं ज्यादा सुन नहीं पाया, बट इन द इनिशियल टाइम आई वाज देयर. तो थैंक यू सो मच Sharma Saab and team for bringing Ramesh ji to all of us, giving us the opportunity to listen to him. Thank you very much. रमेश जी बहुत एक्टिव हैं, ऑलमोस्ट हमारे सभी प्रोग्राम्स में ही पार्टिसिपेट्स, एंड आई सी हिम दैट ही इज वेरी कीन ऑब्जर्वर आल्सो. एंड जो आइडियाज हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करके अपने साथ रखना चाहते हैं. They become present to others as well as they learn something. जैसे अभी इनका दिमाग में आ रहा है to set up his own startup. Hopefully ये successful हो जाएगा तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. They others can also join hands, particularly हमारे tourism sector के जो स्टूडेंट्स हैं. Yes, Mamita. So if we do not have any other observations, we'd like to end today's session. So I would like to thank today's expert, Mr. Ramesh Singh Jadon, for sparing his valuable time to give this inspiring talk. I thank all the directors and heads, regional directors, faculty members and academics of IGNOU for attending today's session. I thank Mr. Rajesh Sharma, Head of the Public Information Unit, for providing NCID with the Facebook Live platform and ensuring the smooth conduct of this session with utmost dedication. I thank Dr. O.P. Sharma, Director NCID, and my colleagues, Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Sujata Santosh, for their untiring support. I thank Mr. Pawan Kumar for extending his assistance in the smooth conduct of this program. This brings us to the end of today's session. Hope to see you next week. Till then, namaste. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.